Bismillahirrahmanirrahim. So our topic today is Tourette syndrome. My name is Dr. Kamran Shaikh. आज की जो आज का जो lecture होगा, it will be mixed in Urdu and English. और जो हमारे North India से लोग हैं वो भी समझ सकेंगे because it's same as Hindi. So uh, let's start. So, Tourette syndrome and other tic disorders. And First of all, it is uh, pronounced as Tourette syndrome. Tourette syndrome, ये इसकी सही pronunciation है. कुछ लोग Tourette syndrome कहते हैं. फाइन. कुछ लोग इसमें इसके अलावा जो फ्रेंच में जो इसकी होगी वो होगी टुरेट सिंड्रोम. टुरेट बिकॉज दे कॉल पेरिस एज पारी, तो वो टुरेट सिंड्रोम इसको कहेंगे. और अगर आप इसको स्पेनिश में कहेंगे तो टोरेटे टोरेटे सिंड्रोम. बेसिकली इट इज जो इंग्लिश में इसकी रिकग्नाइज्ड है वो है टूरेट सिंड्रोम. You can also call Tourette syndrome. Best known of tic disorder. So जो सबसे ज्यादा कॉमन है टिक डिसऑर्डर्स में, दैट इज टोरेट सिंड्रोम. एंड combined persistent vocal and multiple motor tic disorder. That's one line definition. तो ये नाम आप रट लें. Combined vocal and multiple motor tic disorder. मैं अभी एडिट करता हूँ. Persistent. Combined vocal and motor persistent tic disorder. That is one other word for and one line definition of Tourette syndrome. तो पहली बात तो ये है कि इसमें कंबाइंड होंगे वोकल एंड मोटर. दूसरी बात ये है कि एक एक लफ्ज पे आप अगर गौर करें तो मल्टीपल मोटर, वोकल प्लस मल्टीपल मोटर. तो मीन्स के वोकल एक आध टिक भी काफी होगी. मल्टीपल मीन्स के दो या दो से ज्यादा. Will come to the criteria. Two or more, at least two. So persistent means more than 80. Jildila etard, that was 1825 में. बाज़ होता ये है it's not a proven thing and we might reservations about aspects of it. लेकिन उसमें जो है वो Wallace से, I think Wallace was the first, but and at the same time Darwin was also working on it. लेकिन वो थ्योरी डार्विन के नाम से मशहूर हुई. वॉलिस का नाम इतना ज्यादा नहीं आया, ऑल्दो के दोनों तकरीबन एक ही टाइम पे उस पे काम कर रहे थे. इसी तरह 1825 में जब फ्रेंच फिजिशियन जीन ने उसको बयान किया तो उसका नाम इतना ज्यादा नहीं आया. लेकिन जब 1885 में आफ्टर दैट तो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्जेस
of obscenities, barking sounds. Now we more understand and perspectives. सर आवाज बहुत कट हो रही है बीच में। I cannot hear. Neither I can hear. If you're using mobile, so maybe it's let's over the coming decades. We don't know कि हमारी जिंदगी में ये सारी हैं कि नहीं आती, but these are future perspectives. So ticks क्या होती हैं? Ticks are rapid recurring which are phonic or vocal ticks that are non-rhythmic, involuntary, or semi-voluntary and sudden in onset. नहीं मोटर हो सकती हैं, कोई चीज आए और चली जाए. That's a kind of tick. So non-rhythmic, usually they are movements. So motor versus vocal, simple versus complex. सिंपल यानी एक ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स मींस के मल्टीपल मसल ग्रुप्स कैन बी इन्वॉल्व्ड. Usually what I said, it's a movement, so dystonic or clonic, but sometimes it can be a sustained movement. Occur in forehead, hands, or anywhere in the body. So you can go head to toe and you can describe eyes, nose. Examples of motor tics. इसमें एक brief jerking movements. They can सिंपल क्लॉनिक टिक जिसको हम कहते हैं, जिस तरह मायोक्लोनस है. मायोक्लोनस, द डिफरेंस बिटवीन epilepsy, epileptic tell, okay, what will be the difference between because that we haven't covered in the I think I should have covered that. मैं अपनी स्लाइड्स में उसको ऐड कर दूंगा अभी. तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक जर्क और टिक में क्या फर्क होगा बुनियादी? टिक्स कुछ लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, बहुत मतलब कि अगर वो कोशिश करें तो. एब्सोल्युटली, दैट्स इट, बिल्कुल सही है. जबकि जो मायोक्लोनिक जर्क होगा, इट विल बी टोटली इनवॉलंटरी. क्लॉनिक टिक्स जो सी होंगी वो आई ब्लिंकिंग, शोल्डर श्रगिंग एंड हेड टर्निंग. अच्छा, सस्टेन्ड एबनॉर्मल पोस्चर, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि यूजुअली तो ये मूवमेंट होती है, लेकिन इट कुड बी अ परसिस्टेंट टोन एज वेल. अगर ये abnormal and unusual tone, then it is dystonic tic.
That means it's abnormal, uncomfortable, and abnormal posture and unusual tone. So अगर dystonic tic है, dystonia जो extra pyramidal symptoms में होता है, just like that eye closure, blepharospasm, for example, that can happen with the treatment with antipsychotics we give. But can happen as a tic as well. Persistently एक बंदे की आंख, for example, 2 या 3 मिनट के लिए बंद हो जाती है या ज्यादा देर के लिए बंद रहती है, फिर उसके बाद वो खोलने के काबिल होता है. ऑकुलर डेविएशन सच एज टीथ ग्राइंडिंग, ब्रक्सिज्म, और एक ट्रिस्मस एक चीज मैंने देखी, व्हाट इज वन ऑफ द कैटाटोनिक फीचर्स, कि वो टीथ ग्राइंडिंग के अलावा ये तो ब्रक्सिज्म था, एक ट्रिस्मस है कि लॉक्ड जॉ, कि बिल्कुल बंदे ने अपना जो है वो जॉ को लॉक कर लिया है. सो कैटाटोनिया और टिक डिसऑर्डर में ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. माउथ ओपनिंग, ट्विस्टिंग, टिल्टिंग ऑफ द नेक, टॉर्टिकोलिस, शोल्डर रोटेशन, ये सारे डिस्टोनिक टिक्स हैं. और अभी हम सिर्फ सिंपल मोटर टिक्स पे हैं, अभी ये सारी सिंपल हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मसल ग्रुप इन्वॉल्व है. तो टॉर्टिकोलिस ओनली नेक मसल्स, फिर उसके बाद शोल्डर रोटेशन, फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज टॉनिक टिक, टेंसिंग ऑफ एब्डोमेन और मसल. तो समटाइम्स दैट कैन हैपन. That's what I show. I say to their parents, that child should be allowed that at least and should be encouraged to, क्योंकि ये एक psychic energy है, इसने बाहर आना है. As long as they are tensing their abdominal muscle or limb muscles in an isometric contraction, sustained, that means they will not feel actually accept है कि moving your toes, जो पाँव के जो वो हैं उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां, उसको अगर आप हिलाते रहें जूते के अंदर अंदर, nobody will be see that. तो if these are kind of more socially acceptable ticks, but that will be a simple tick. Again, if somebody is moving only toes, that will be a simple tick. That will not be a tonic tick. That will be simple clonic tick. And here it will be simple tonic tick, tensing of abdomen or chest muscles or limb muscles. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो okay, complex motor tics. So touching objects, jumping, rotating, imitating others' gestures, apoplexia. Multiple muscles are involved. That's motor tics. ठीक है जी. उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है इसमें, वो है जी कि वोकल टिक्स. वोकल टिक्स में जो सिंपल होती हैं, थ्रोट क्लियरिंग, coughing, coughing without a reason, sniffing, ये सिंपल वोकल टिक्स हैं. इसी तरह जो है वो एक और सिंपल मोटर टिक मेरे जहन में आ रही है. इस तरह एक बहुत बड़े फनकार हैं कराची, तो वो क्या करते हैं कि वो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एंड ही इज अ लेजेंड, वेरी बिग लेजेंड, लेकिन वो उनसे ड्रामे में वो अगर कह, देखो मैंने तुम्हें पहले भी ये बात कही थी,
नहीं हो सकता। और साथ ही वो अपनी नाक पे हाथ लगे। तो वो उनसे किसी ने पूछा कि तलत साहब व्हाट इज दिस, कहते बस ये मुझे है। तो some things are not beyond a person's control. तो that's what I wanted to say. फिर उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल और one's own phrases, अगर अपने ही अल्फाज को बंदा रिपीट कर रहा हो, that is kind of one's own phrase, that is पहली ले लिया, repeating one's own words, पहली ले लिया, और repeating, that means which we described in autism, that in autism पहली ले लिया and echolalia is more common. अच्छा, ये मुझे कोई बताए कि what will be the difference between echolalia and autism and echolalia as a tic, like a stereotype verbalizations in autism, and if echolalia is occurring as a tic, what will be the difference? इस तरह पहले आप लोगों ने बताया मुझे कि एपिलेप्सी के बारे में. Can anybody explain? I'm not sure. Maybe someone else. Rizwan, can you? Chale, I will explain to you. Slide on it, please. बहुत ही great learning disability के साथ कोई बच्चा है या माइल्ड एलडी के साथ, और वो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल गालियां दे रहा है, तो आप उसको प्यार से समझाएंगे और उसके जबान पे आप कुछ और उसकी जगह चढ़ा देंगे कि बेटा ये नहीं ये कहो, मे बी कि वो आप उसको सब्स्टिट्यूट देंगे तो वो ही विल लर्न. फॉर एग्जांपल गालियों की बजाय अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं बेटा बिस्मिल्लाह 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 इस तरह कहो या अल्लाह अल्लाह कहो, तो बहुत प्यार से अगर उसको कहेंगे तो दे मे सब्स्टिट्यूट इट विद समथिंग एल्स बिकॉज दे डोंट नो. इसी तरह कॉप्रोप्रेक्सिया है, दैट इज अ मोटर टिक, दैट्स नॉट अ वोकल टिक. So let's edit it here. So, for example, obscene gestures, एक गलत किस्म के इशारे कर रहा है. अगर कोई बच्चा, आप गाइड कर सकते हैं कि इस तरह नहीं इस तरह करो. फॉर एग्जाम्पल वो गलत इशारा कर रहा है तो आप उसको समझाएंगे कि नहीं ये इशारा ज्यादा मुनासिब ये होगा कि जिस तरह किसी को सलाम कर रहे हैं वो कर, या सलूट का कर लो, या फिर जो है वो दुआ के लिए जिस तरह हाथ उठाते हैं वैसे कर लो. तो दैट विल बी अ मोर सोशली एक्सेप्टेबल जेस्चर. तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी पड़ेगी कॉप्रोप्रेक्सिया में, बिकॉज यू कांट स्टॉप इट ऑल टुगेदर. तो आपको फौरी तौर पे उसकी जो नेचर है उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स इन हैबिट रिवर्सल. फिर उसके बाद जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिक्स हैं. तो टिक्स आर इन बाउट्स वन, यानी बाउट्स में एपिसोडिक मैनर में आती हैं टिक्स. सर वो पेरिलोलिया में आप जी जी बताइए. I am sorry. Can you please unmute? सर वो मैं ये पूछ रहा था, आपने जैसे बताया ना कि हम उसको हैबिट रिवर्सल कर सकते हैं, तो पेरिलोलिया में मतलब किस तरह से करेंगे अगर उस तरह का कोई मतलब. पहली ले लिए में जरूरत क्या है, वो नो नीड. अगर वो कहता है
कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, what's the need? If you are at home, you're not disturbed by it, let them do it. ठीक है ना? ठीक है अगर ये है कि if it is really disturbed, have to change. Otherwise ये है कि आप उसको don't interfere too much with it. ठीक है ना? तो इसी तरह अगर वो कहता है कि जी मैं तो ये तो एक सिलेबल हो गया ना, मैं अच्छा बच्चा हूँ। अगर मजीद इसको फ्रेज करेंगे तो मैं अच्छा बच्चा हूँ, that's fine. If they are saying that in front of their parents, their families, I don't mind. तो that depends कि उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी और नीड्स कितनी ज्यादा हैं, तो should be okay. ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ठीक है, और अगर इसको सर, आप ये स्किज़ो मजीद में भी इस करेंगे तरह कि हो सकता है? इसमें स्किज़ोफ्रेनिया में भी इस तरह मतलब टिक्स होते होते हैं बिल्कुल कुछ लोगों? बिल्कुल स्किज़ोफ्रेनिया में, कैटाटोनिया में, पैलिलेलिया बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट? एंड दे आर जस्ट साइकाइट्री इज वेरी आर्बिट्ररी, तो फिर हम इसको क्राइटेरिया के जरिए और डेफिनेशंस के जरिए तकसीम करते हैं कि जी इसमें क्या चीज किसमें नहीं होगी। तो दैट्स व्हाट साइकाइट्री है। ठीक है। तो अगर पहले ले लिया किसी सेंटेंस का होगा तो वो कहेगा कि जी मेरी अम्मी मुझे प्यार करती हैं, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। He said two sentences, but he is repeating the last sentence again and again. That is the example of palilalia. ठीक है। और एकोलेलिया में ये है कि मैं अगर रिजवान साहब ने कुछ कहा है तो मैं जस्ट रिपीट दैट विदाउट कि रिजवान साहब ने मुझसे पूछा है कि आपका क्या हाल है, और मैं बजाय इसके कि मैं बताना चाहूँ कि जी मैं ठीक हूँ, मैं कहना शुरू कर दूंगा आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। दैट इज एकोलेलिया। ठीक है। सिंपल मोटर टिक्स और मोस्ट कॉमन इनिशियल प्रेजेंटेशन, सबसे पहले जो टिक डेवलप होती है वो सिंपल मोटर टिक होती है, यानी कोई ना कोई मूवमेंट होती है। और अक्सर हमने देखा लोग इवन सन ग्लासेस और नॉर्मल ग्लासेस, इफ दे हैव विजुअल अक्यूटी प्रॉब्लम, वो इसलिए पहनते हैं कि उनकी आंखें ब्लिंक कर रही होती हैं पीछे से, तो वो नहीं शो करना चाहते, उसको कवर करने के लिए। एंड इट हैपेंस टू many adults even कि वो उसको कवर करने के लिए। तो मोटर टिक्स आर मोर कॉमन एंड द इनिशियल प्रेजेंटेशन एंड स्पेशली आई ब्लिंकिंग, ये सबसे पहले होती है। टिक्स में परसिस्ट ड्यूरिंग स्लीप, लेकिन उसमें उसमें और आप उसमें एपिलेप्सी में किस तरह को जागते में होती हैं, ही हैज सम कंट्रोल। जब सोते में हो रही हैं तो नो कंट्रोल ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज स्लीपिंग, लेकिन जाग अगर जागते में भी कोई कंट्रोल नहीं है, जीरो कंट्रोल, रात को सोते में भी हो रही है, देन इट इज मोर लाइकली टू बी मायोक्लोनिक जर्क, लेकिन सिंपल मायोक्लोनिक जर्क, लेकिन लाइक सीजर। लेकिन अगर उसमें वो जागते में थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है और उसको सोते में भी होता है, मोस्ट लाइकली इट्स नॉट एपिलेप्सी। तो शुड नॉट जंप ऑन कंक्लूजन कि जी अगर सोते में हो रही है तो बस एपिलेप्सी है, कुछ और नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। टिक्स कैन ऑल्सो, and what we are describing today is from the Kaplan and Sadok mainly. So, although irresistible, critics can be suppressed for varying periods of time. Some patients describe suppressing tics for several hours while at work or school. That's what I recommend. कि आप वर्क और स्कूल पे हैं तो इसको सप्रेस करें, और when you're alone, discharge the tics on your own. Especially जब आप अपने बेडरूम में अकेले हैं, घर में अकेले हैं या फैमिली के सामने हैं, let them discharge so that they can control that in the school environment. क्योंकि आप उसको जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं टिक्स को, बट यू कांट कैंसिल द टिक्स ऑल टुगेदर। तो
स्कूल में अगर वो कंट्रोल कर लेता है, टॉयलेट में जाके इवन दे कैन डिस्चार्ज ऑन देयर ओन। और इसके अलावा ये है कि समटाइम्स, जिस नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, कि बच्चों को टिक फ्री वो दी जाती है, मूवमेंट ब्रेक्स दी जाती हैं एडीएचडी वाले बच्चों को, मूवमेंट ब्रेक, और टिक डिसऑर्डर वाले बच्चों को टिक ब्रेक दी जाती हैं। एंड इन पाकिस्तान यू कैन डू दैट, you can advise the teacher to give child order पीरियड हो रहा है तो वो अपने टिक्स को काबू में रखे, और जैसे ही उसका पीरियड ओवर हुआ है या ड्यूरिंग द पीरियड इफ यू थिंक you can allow them out, to let them go out, discharge the ticks, come back. तो टिक ब्रेक्स और एडीएचडी में जो मैंने डॉक्टर इनाम को रिक्वेस्ट की है, तो मे बी इन अ फ्यू वीक्स टाइम ही विल टीच यू एडीएचडी. So I think you can ask him this question, or he will automatically, I think he will mention it. So although irresistible, they can be suppressed for varying periods of time. उसके बाद यह कि reduction in frequency and severity of tics during the concentration on mental or physical tasks such as reading. जब आप concentrate कर रहे होते हैं तो आपकी tics कम हो जाती हैं. स्ट्रेस की वजह से टिक्स बढ़ जाती हैं, बोर्डम में बढ़ जाती हैं, एक्साइटमेंट में बढ़ जाती हैं, फटीग में बढ़ जाती हैं, और एक्सपोजर टू हीट, जितना गर्म मौसम होगा उतना ज्यादा बंदे पे स्ट्रेस होता है, दैट कैन एक्सरबेट टिक्स. Tics frequency may also increase during relaxation following a period of stress. But despite that, हम stress जो relaxation exercise हैं वो we still recommend कि होनी चाहिए. Sometimes जब person अपनी tics को actively attempting to suppress their tics, they can get aggravated. तो उसको suppress करने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका जो एक substitute, एक नेमुल बदल उसका देना चाहिए, या tick discharging intervals देने चाहिए. Some children and occasionally adults are unaware of their tics. Sometimes आपको बताना पड़ता है, they're not even aware. ठीक है, अच्छा. Reduction in frequency and severity of tics during concentration, ये हमने पढ़ लिया. और फिर ये कि टिक फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ये भी हमने पढ़ लिया. और उसके बाद सम चिल्ड्रन आर अनअवेयर, ये भी हमने पढ़ लिया. फिर इन मेजॉरिटी टिक्स आर वॉलंटरी रिस्पॉन्स टू एन अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट प्रीसीड्स देम. तो यहां पे दैट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन autism, like involuntary movements, stereotype movements in autism. They're also semi-voluntary. In totally involuntary, अगर कोई movement है, that is either in Huntington's chorea, or even that may or may not be, I'm not sure कि उसको modify कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन they're mainly involuntary. या फिर epilepsy की जो movements हैं, they are totally involuntary. तो इसके अलावा जितनी भी मूवमेंट्स हैं, दे आर सेमी वॉलंटरी. यू कैन हैव सम कंट्रोल ओवर दैट. द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन ऑटिस्टिक स्टीरियोटाइपी एंड टिक इज कि टिक से पहले आपको एक अर्ज होती है हल्की सी. इट्स नॉट अ कंप्लीट ऑब्सेशन. इट इज नॉट अ कंप्लीट ऑब्सेशन which leads to a compulsion, but there is a touch of an obsession or a touch of an urge, a very mild urge. आपको फील होती है कि मैं इस तरह करूं, और आप uncomfortable फील करते हैं, and then you discharge the tick and you get relaxed. तो लेकिन स्टीरियोटाइपी में ये है कि the child, usually the stereotype movements, children with autism जिनमें कोई mild learning disability भी हो, mild or severe or moderate, so mild or severe than that, उनमें ये होता है it's just automatically occurring and they are enjoying it and they are not having any urge. It's just their habit
That's the way they enjoy. So that is the key difference कि जो टिक डिसऑर्डर है उसमें अर्ज होगी, उसमें वो even for a 1 second or 2 seconds they will just feel uncomfortable, they will discharge the tick and they will feel relieved. That is the thing in tick disorder. जबकि जो autistic stereotypy है उसमें just it will happen and without any reason. Burning feeling in the eye before an eye blink, ये भी हो सकता है, और the differential diagnosis will be conjunctivitis, और ये है कि sometimes it can be conjunctivitis or sometimes it could be just tick disorder. इसी तरह urges, sensations or anxiety. There can be urges, or it could be a sensation even, or it could be a mild anxiety in your mind which leads you to discharge that tick, especially if there is a vocal tick. ठीक है, and mannerisms, eye blinking, nose twitching, shoulder shrugging, sustained eye closure, tensing of abdominal and limb muscles, which is isometric, ये हमने देख लिया. Complex motor में touching objects or self, hitting, kicking, हैंड जेस्चर्स, थ्रोइंग, स्क्वाटिंग और जंपिंग. और यहाँ पे इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हंटिंगटन कोरिया के साथ आता है कि हंटिंगटन कोरिया में जो टिक्स होंगी that will be more kind of involuntary movements, but and with no urges. और टिक्स में जो टिक डिसऑर्डर में होगी अर्जेस होंगी और सेमी वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे. सिंपल वोकल में throat clearing, coughing, sniffing, blowing, barking. Complex vocal में syllables or words, phrases, swearing. Swearing का मतलब है गाली देना. Swear has two meanings in English. One is cursing, गाली देना or abusing, और जो दूसरा इसका मतलब है कसम खाना, taking oath on something. तो यहाँ पे जो swearing से मुराद है वो ये है कि गाली देना. Repeating one's own words, which is palilalia, or other words echolalia, or changes in the rate, rhythm and volume of speech. Differentiating from compulsion, stereotypies and tardive dyskinesia, impulse will add seizure as well, myoclonic jerk, which is completely involuntary. So tics or mannerisms जो हैं उसमें ये है कि satisfy an urge and it's just right phenomenon. कि जैसे ही आपको अर्ज महसूस हुई और साथ ही आपने उसको टिक को डिस्चार्ज किया and you're happy. That is the thing. अच्छा, उसके बाद compulsions में होता है कि it's more than an urge. It's not only an urge, it is a very kind of strong urge plus obsessional thought, doubt कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कि कंटेमिनेशन है और मुझे उसको साफ करना है, लॉक नहीं हुआ है, मुझे उसको बार बार चेक करना है. तो और उसके बाद ये है कि टिक्स में तो मैं जाके सेटिस्फाई हो जाऊंगा, बट इन कंपल्शंस आई विल नॉट गेट सेटिस्फाइड. I will get satisfied only for maybe 5-10 minutes and then I will do it again and again. Tics जो है more egocentric हैं, pleasant for the ego or just right. लेकिन compulsions will make you uncomfortable, ego dystonic होंगी. That's the key difference. Impulse control disorder में है, for example self harm में अगर आप देखते हैं कि कोई बंदा सेल्फ हार्म कर रहा है तो उसमें व्हाट विल हैपन. तो सेल्फ हार्म में यह है कि पूरी एक अर्ज होगी, सिस्टमेटाइज्ड अर्ज होगी कि करना है, and it will be almost voluntary or deliberate act of self harm. That's why इसको deliberate self harm भी कहा जाता था पहले. अब भी इसको involuntary self harm नहीं कहते, just self harm कहते हैं, although it is deliberate to kind of काफी हद तक ये deliberate ही होता है. To most of the extent it is deliberate. तो
that's what happens in impulse control disorders कि वो they are almost deliberate लेकिन they're not completely. टिक में I आपका have a question. उसका जो झुकाव था टिक का वो था सेमी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की तरफ. इम्पल्स कंट्रोल में इसका वॉलंटरी की तरफ और डेलिब्रेट की तरफ झुकाव ज्यादा होगा कि मेरे अंदर एक अर्ज उठी कि मैंने अपने आप को काटना है. उस अर्ज वो इतनी शदीद थी और मैंने जाके किचन से एक ब्लेड पकड़ा, एक छुरी पकड़ी और मैंने एक रिस्ट पे अपना हल्का सा कट लगा दिया. उसके बाद मेरी टेंशन के लिए रिलीव हो गई. इट्स नॉट अ टिक, इट इज काइंड ऑफ एन इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर कि जिस द सेल्फ हार्म बिहेवियर. और इसी तरह क्लेप्टोमेनिया हो गया कि जिसमें चोरी करके शॉपलिफ्टिंग करके लोग रिलीफ, या फिर पायरोमेनिया हो गया कि जिसमें आग लगा के लोग रिलीफ हासिल करते हैं. स्टीरियोटिपीज में मैंने बता दिया कि नो अर्ज, सेमी वॉलंटरी एंड मोर ड्यू टू एक्साइटमेंट and usually seen in no in autism. Tardive dyskinesia, age difference I would say कि जो अगर because टिक्स के लिए कहते हैं कि 18 से नीचे नीचे होनी चाहिए. If it is happening after the age of 18 and especially in middle age or older adulthood, we just call it tardive dyskinesia. It's the same thing. अर्ज आती है, उसके बाद वो करते हैं, उसके बाद they get relieved for some times. और समटाइम्स वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो जाती है, उस काफी almost involuntary बन जाती है. But even people with tardive dyskinesia have some control over it. Tardive dyskinesia मेडिकेशन के साथ भी हो सकता है. It can occur without the medication as well. ठीक हो गया. Differential diagnosis akathisia, that's सर from इसमें Kaplan. सॉरी सर, आप एक सवाल था मेरा. ये जी आप फरमाइए. जो बता रहे थे कंपल्शंस में जो है दैट्स ईगो डिस्टोनिक और टिक्स जो है वो ईगो सिंटोनिक. तो सर मतलब लाइक ईगो सिंटोनिक तो मीन्स ये कि प्लेजर मतलब यू आर सेटिस्फाइंग, मतलब उससे खुश Yes, हो रहे हो आप. तो क्या yes. टिक्स वाले मतलब अपने टिक्स से खुश होते हैं, मतलब उनको ये मतलब वो नहीं होता कि यार ये मतलब मतलब ये नहीं कि यार कि ये तो उससे वो परेशान नहीं होते अपनी टिक से. नहीं होते. That's what it is said both in Oxford textbook of psychiatry and in Kaplan and Sadek. It is just right phenomenon. एक अर्ज उठी, मैंने टिक डिस्चार्ज कर दी, आई एम सेटिस्फाइड. फिर अगली टिक आने तक I will remain satisfied. I will get disturbed due to the tick. It will relieve me from the urge. So it is just right phenomenon. लेकिन obsession में it will relieve you, but very soon it will start itching you again. और आपकी जो एंजाइटी है वो बढ़ती जाएगी until you go to sleep or take something or do some relaxation exercises. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें आपकी एंजाइटी कंप्लीटली रिलीव हो जाती है टिक डिस्चार्ज करने के बाद. आपको जितनी भी अर्जेस आती जाएं, आप टिक डिस्चार्ज करते जाएं, इट डजंट मैटर, यू आर सेटिस्फाइड. आपको वो अर्ज थोड़ा सा तंग करती है लेकिन आपको टिक तंग नहीं करती. वो दूसरों को मे बी के तंग करे, देखने वालों को, लेकिन आपको यू आर नॉट दैट अफेक्टेड विद इट. अच्छा इफ यू मतलब स्टार्ट इंटरनली गेटिंग आप. अफेक्टेड ड्यू टू द टिक, देन इट बिकम्स अ कंपल्शन. जी भाई. हाँ, ठीक है, मतलब इंटरनली वो सेटिस्फाई, क्योंकि वो सर वो जो एक मूवी देख रहे थे उसमें पूरी उसकी फंक्शनैलिटी खराब हो जाती है ना, कोई इंटरव्यू में मतलब उसको वोकल टिक्स डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो मतलब उसकी एग्जैक्टली पूरी वो तो लाइफ वो. टिक का अपना जो स्ट्रेस है वो नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से जो सोशल इम्पैक्ट्स होंगे, ऑफ कोर्स दैट विल बी स्ट्रेसफुल. लेकिन टिक एज सच, टिक का अपना कोई डिस्प्लेजर नहीं होगा. अगर किसी को एक सिंगल टिक आ रही है या किसी को 5 टिक्स आ रही हैं दिन में, दैट विल नॉट अफेक्ट हिम एट ऑल हिज सोशल फंक्शंस. लेकिन जब टिक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, यानी एज अ क्वालिटेटिवली उसका कुछ नहीं है, लेकिन जब क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी
और या फिर उसकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा ऑब्सेनिटी या कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स आ जाएंगी कि दूसरे देखने वाले मजाक उड़ाने लगे या उनकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होने लगे, तो उस फंक्शनैलिटी के अफेक्ट होने की वजह से उनकी जो है वो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उनकी सेल्फ एस्टीम घट जाएगी। लेकिन अगर उनकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब नहीं होती, दे विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर वो अपना होमवर्क वगैरह सब कुछ टाइम पे कर सकते हैं, इट विल नॉट बी। ठीक है, यू गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद एकैथीजिया, दैट्स मोस्ट मोटर रेस्टलेसनेस। ये ये बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है। तो इतनी अनकंफर्टेबल है कि यू कांट कॉल इट अ टिक। ठीक है, यू कांट कॉल इट अ कॉम्प्लेक्स मोटर टिक क्योंकि इट इज एन एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, और इसमें एक इनर अर्ज होती है। तो इट्स इवन वर्स देन एन ऑब्सेशन। एथिटोसिस will be more kind of involuntary movement, जिसका मरीज को पता चल रहा होगा। यू हैव टू गो थ्रू द इटियोलॉजी कि वो इटियोलॉजी में क्या वो पार्शियल सीजर्स की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से। यूजुअली इट इज अ न्यूरोलॉजिकल कॉज अदर देन सीजर्स। सेम विद बेलिस्मस, सेम विद कोरिया, they are neurological but non-epileptic phenomenon. कंपल्शन हमने देख लिया, डिस्काइनेसिया हमने अभी देख लिया, and not suppressible, that's another thing. Dyskinesia is hard to suppress as compared to tics. इसीलिए जो elderly आते हैं, अगर उनको dyskinetic movements हो रही हैं, they're hardly suppressible. बहुत कम elderly देखें जो कि थोड़ी सी देर के लिए suppress कर सकते हैं। तो it's a bit harder than tic, tardive dyskinesia is. फिर dystonia हमने देख लिया, myoclonic jerks हमने देख लिया, epileptic phenomenon, periodic movements of sleep, अगर तो वो just restless leg syndrome की वजह से हो रहा है, that's something else, that's not a tic, क्योंकि वो उसमें सिर्फ स्लीप में हो रहा है। अगर तो that's a sleep disorder। अगर वो जागते में भी वही चीज होती है, then we will call it as tic। spasm, बाजू का स्पाज्म किसी और वजह से हो जाता है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से या वेट लिफ्टिंग की वजह से, दैट्स समथिंग एल्स। या पोस्चर की वजह से आप गलत पोस्चर में सो गए। स्टीरियोटिपी हमने पढ़ लिया कि यूजुअली मीनिंगलेस जेस्चर्स एंड हैबिट्स और ऑटोमेटिज्म्स। टिक्स हमने अभी देख लिया। ट्रेमर्स हमने देख लिया कि ट्रेमर्स आर अनइंटेंशनल, समवट रिदमिक, involving oscillations of one or more parts of the body। ठीक है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ये है कि हम इसको डायग्नोज किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट में डिवाइड करते हैं। एनी ट्रांजिएंट टिक डिसऑर्डर इज लेस देन 12 मंथ्स, और DSM-5 में इसको प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर कहा जाता है, जबकि ICD-10 में ट्रांजिएंट इसको कहते हैं। फिर उसके बाद परसिस्ट, और अगर 12 मंथ से ज्यादा होगा तो दैट विल बी परसिस्टेंट मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर। दूसरी जो इसमें है कि एंड और, ट्रांजिएंट में एंड और है, तो दैट्स इट कुड बी ट्रांजिएंट मोटर एंड वोकल टिक डिसऑर्डर। 12 मंथ से कोई भी चीज कम होगी, इट कुड बी मोटर और वोकल और बोथ टिक डिसऑर्डर। सो दैट इज ट्रांजिएंट मोटर एंड और वोकल टिक डिसऑर्डर। जब ये साल से बढ़ गई है ड्यूरेशन, देन वी विल close the door when you go। जब साल से ये बढ़, तो तब हम इसको कहेंगे कि इट इज परसिस्टेंट। अब यहां पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मोटर और वोकल और मोटर एंड वोकल। आर यू विद मी? टेक्स्ट में लिख के बता दें इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस, गुड, ठीक है।
तो जब हम कहेंगे कि परसिस्टेंट मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर, तो दैट मीन्स कि ये दैट्स अ काइंड ऑफ टिक डिसऑर्डर, परसिस्टेंट टिक डिसऑर्डर। तो हम या तो इसको कहेंगे कि परसिस्टेंट मोटर टिक डिसऑर्डर है, कि एक बंदा है जिसको पिछले 10 साल से, 20 साल से, और इवन 60 साल से, सारी जिंदगी, दैट स्टार्टेड व्हेन ही वाज 12 इयर्स ऑफ एज और 8 इयर्स ऑफ एज, और उनको अभी तक आ रही है परसिस्टेंट, लेकिन है एक ही टिक है कि वो आई ब्लिंक करते हैं, इज 60 year old, 70 years old, और वो चश्मा पहनते हैं, एंड इट इज ओके, पीपल कैन सी बट दे कैन हार्डली नोटिस, or sometimes they will wear sunglasses, sometimes their own normal glasses, and that will partly conceal their tic. That is a persistent motor tic disorder. फिर एक बंदा है जिसको एक आदत पड़ गई है बचपन से ही कि वो थ्रोट क्लियर करते रहते हैं। So that means कि वो uh, that's a persistent vocal tic disorder. Could be one or more vocal or one or more motor, but it is motor or vocal. जब आप 12 months को भी कंबाइन कर दिया है, मोटर एंड वोकल कर दिया है, तब आप इसको टोरेट सिंड्रोम कहेंगे, कि 12 मंथ से ज्यादा, पहला क्राइटेरिया। दूसरी बात यह कि मोटर एंड वोकल, कंबाइंड वोकल एंड मल्टीपल मोटर, यानी वोकल एक टिक भी आ जाए, एक कम से कम एक वोकल टिक होना जरूरी है, प्लस टू और मोर मोटर टिक्स। तो दो से ज्यादा मोटर टिक्स हो रही हैं, आई ब्लिंकिंग हो रही है एक बंदे को, और वो वोकल टिक में वो अपना थ्रोट क्लियर करता है, और दूसरा ये है कि वो अपनी नोज को बार बार टच करता है। सो दीज आर एटलीस्ट 2 मोटर टिक्स प्लस eye blinking more than 1 year, more than 12 months. That is persistent motor and vocal tic disorder, and that is Tourette syndrome. It it has to start before the age of 18 according to this DSM-5. अगर आफ्टर द एज ऑफ 18 हो रहा है, तो अगर तो ये उनका जो उसको ज्यादातर सप्रेस कर सकते हैं, तो आप यू कैन से कि जी वो अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर, क्योंकि वो क्राइटेरिया नहीं कर उसको पूरा नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो सप्रेस नहीं कर सकता है, और दे कैन हार्डली सप्रेस, बहुत मुश्किल से सप्रेस होती है, तो फिर इट्स मोर ऑफ अ टार्डिव डिस्काइनेसिया। So that will be the differentiating point. So other specified tick disorder or tick disorder unspecified. That's why अगर आप इसको किसी ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं कर सकते, अगर तो अदर स्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल जो एक ऑक्सफोर्ड से एक टेबल है, अगर उस टेबल के अंदर फिट हो जाती है, तो वी कैन से कि जी स्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर ड्यू टू सच एंड सच इटियोलॉजी। और अगर कोई आपको कॉज भी नहीं मिल रही और क्राइटेरिया भी फिल नहीं हो रहा, देन यू विल से टिक डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी। सो 20% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन में ये ट्रांजिएंट टिक डिसऑर्डर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द यूएस स्टडीज, but it is transient or provisional tick disorder which is less than 1 year. जब ये years से ज्यादा बढ़ जाएगा, so it is kind of 1% to 10%. इसका that is Tourette syndrome, कि अगर combined vocal and motor होगा और more than 1 year होगा, Tourette syndrome, that is 1 to 10%. That is its epidemiology. Etiology, we don't know the etiology, लेकिन इसमें कहते हैं कि जी corticostriato thalami cortical CSTC pathways कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन होता है। कॉर्डेट बेसल गैंग्लिया में, फ्रंटल लोब्स में भी हो सकते हैं ये। और उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोजिनस ओपियोइड्स,
और इसकी जो मेडिकेशन देते हैं उसमें नॉर एड्रेनलिन का भी कुछ ना कुछ दखल होता है. हाई CSF corticotropin releasing factor CRF, when it is high, that can be there in the tic disorders. Tic disorders और OCD, it's the same spectrum. तो जब आपको कोई भी चीज मिल जाती है, then presentation which differs. OCD में obsession होती है, which is much. Of course, OCD, the compulsion is more ego-dystonic, जबकि tic is relatively ego-syntonic. PANDAS, इसका आपको पता होना चाहिए. टर्म बाद में आई, लेकिन when we were medical students, तो हम उस वक्त भी हम सुनते थे. Yes, I think it's the same pathway as OCD, I would say. तो जब हम लोग मेडिसिन पढ़ रहे थे तो डेविडसन एंड कुमार एंड क्लार्क, उसमें हमने उस वक्त जो पढ़ा था 1999 की बात है कि उस वक्त जो हम पढ़ते थे कि सेंट वाइट्स डांस और सिडनहैम कोरिया जो कि रोमैटिक फीवर के बाद होता है. व्हाट हैपेंस के जी और रोमैटिक मतलब ये कि रोमैटिक फीवर हुआ, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी और वो एंटीबॉडीज ब्रेन में गई. उन्होंने जाके कॉर्डेट न्यूक्लियस और बेसल गैंग्लिया पे इफेक्ट किया एंड आफ्टर देयर इफेक्ट को जो है वो सेंट वाइटिस डांस आना शुरू हो गया, यानी जो सिडनहैम कोरिया कोरिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो गई. And that's what happens in the rheumatic fever. लेकिन बाद में उन्होंने उसको मजीद सर्च किया in the next 10 years. उन्होंने कहा कि it's not only Sydenham chorea and other things, that autoimmune response can also cause compulsions or tics in children. तो इसको फिर उन्होंने पूरा जौन सा है उसमें आई थिंक के जो कोरीफॉर्म रोमैटिक फीवर है वो दैट should also be covered in PANDAS. उन्होंने उसका पूरा नाम दे दिया pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with infection, and that is happens due to group A beta hemolytic streptococcus. उसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज बनती हैं they affect the brain. And also there are other inflammatory changes which can affect the brain. For example, pro-inflammatory cytokines or decrease numbers of regulatory T cells sometimes. तो इसमें ये है कि sometimes you might have to go for anti-streptolysin O or anti-DNase B titers to show कि can it be PANDAS. So these will be the investigations. Vigorous treatment with antibiotics when streptococcal infection is confirmed. जब हम लोग पढ़ रहे थे उसका सिडनहैम कोरिया का, तो उसमें भी penicillin should be continued for some time and repeated courses of penicillin. कि उसको जितना आप एंटीबायोटिक से कवर करें वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एंटीबॉडीज जाके उसमें इम्यून डैमेज करें. अच्छा, उसके बाद जी इमेजेस हैं. इमेजिंग MRI स्टडीज में स्मॉल चेंजेस इन ब्रेन्स, कॉर्टिकल थिनिंग और नॉर्मल बेसल गैंग्लिया सिमेट्री, prefrontal volumes can compensatory increase in prefrontal volumes in children, neuroplasticity can occur, और इसके अलावा overall brain volume is decreased. Functional imaging, again, metabolism will be variable in these cases. So altered activity increased or decreased in various areas of the brain. So frontal and orbital cortex in tardive dyskinesia patients, and also in the striatum and basal ganglia putamen. अच्छा, उसके बाद genetic findings में ये है कि there is some genetic component, but that does not explain everything. It's the gene environment interaction which is mainly responsible, क्योंकि इसमें the occurrence is more, but
like it's 50 to 90%. But of course, there are environmental factors as well. उसके बाद ये फिर उसके बाद मल्टीपल जीन लोकाई हैं देयर इन दी कैप्लन एंड सडॉक बहुत सारे उन्होंने क्रोमोसोम्स पे बताया फलां जीन भी हो सकती है फलां जीन भी हो सकती है अच्छा उसके बाद सेकेंडरी कॉजेज ऑफ टिक्स अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकाइट्री तो उसमें mental retardation, learning disability, autism. Even in autism, it's not only stereotypy. Can tics occur in autism? Yes or no? बेशक वॉइस में बता दें टेक्स्ट में बता दें yes absolutely right all those stereotypies are typical in autism but tics can occur अच्छा can OCD occur in autism? Yeah, stereotypy is again semi-voluntary, but usually they are not at all disturbed, and their intellectual level is a bit, mild to moderate learning disability. So they enjoy their tics in autism. And अच्छा उसके बाद OCD can it occur in autism? Yes or no? रिजवान आप टेक्स्ट करते जाएं बेशक ठीक है इट कैन अकर सर दोबारा बोलिएगा मैं पूछ रहा था ओसीडी ओसीडी हो सकती है ऑटिज्म में यस सर डेफिनेटली हो सकती बिल्कुल है हो सकती है ना तो टिक्स कैन बी स्टीरियोटाइपीज यस ओसीडी कैन अकर इन ऑटिज्म ठीक है तो जब इस एक ऑटिस्टिक बच्चे को जब स्टीरियोटाइपीज आ रही हैं समटाइम्स दे कैन चेंज इनटू टिक्स अगर उनको पहले अर्ज होना शुरू होती है and they get discomfort before then it is a tick और sometimes जब उनको वो अर्ज की बजाय ऑब्सेशन हो जाती है and they start getting uncomfortable with their movements or with their compulsion then it becomes a compulsion so everything is interchangeable ठीक है रेट सिंड्रोम जेनेटिक क्रोमोसोमल abnormalities एक्स-लिंक्ड और फिर इसके अलावा बहुत सारे जो नाम read through phenylketonuria or tuberous sclerosis, Klinefelter syndrome, neurofibromatosis, developmental structuring. So these are all the secondary neurodevelopmental causes of Rett syndrome. बेटा ये होता है कि it is a moderate to severe learning disabled girls only. Usually, maybe exclusively. I think they are exclusive. So मैंने आज तक 2007 में जब मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी की एक जॉब की थी उस वक्त एक केस देखा था मैंने जो कि उस वक्त के मेरे कंसल्टेंट थे डॉक्टर रामजी साहब लुई रामजी उन्होंने मुझे दिखाया तो काइंड ऑफ रिंगिंग मूवमेंट्स मींस कि वो अपने हाथों को जिस तरह पिल रोलिंग या जिस तरह से जिस तरह बॉल को जैसे आप स्विंग नहीं करते तो आप अपने हाथ को घुमाते हैं रिस्ट को घुमाते हैं इस तरह के मूवमेंट्स उसके रिस्ट या एल्बो पे आ रही थी एंड दैट इज रेट सिंड्रोम so that is almost kind of they're more of a stereotypy because you are seeing you are dealing with a person with a moderate learning disability तो मैं उसको टिक नहीं कहूंगा बल्कि मैं कहूंगा कि it's the stereotype movements associated with Rett syndrome. Again, if there is an urge, then it will be a tick. जी एक्यूट ब्रेन लेजन्स में पोस्ट ट्रॉमेटिक बच्चे को हेड इंजरी हुई उसके बाद टिक स्टार्ट हो गई वेस्कुलर इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस हुआ बचपन में मेनिंजाइटिस हुआ ठीक हो गया उसके बाद टिक्स आना शुरू हो गई वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स आई थिंक दैट इज इट और उसी की बाद में हर्पीज जोस्टर भी होती है एडल्टहुड में
उसके बाद भी अगर इफ देयर इज अ herpes zoster एनकेफेलाइटिस तो उसकी वजह से, या अगर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इतना था तो उस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से मे बी, वी डोंट नो एग्जैक्ट etiology। herpes simplex और zoster दोनों में हो सकता है। माइकोप्लाज्मा निमोनी, लाइम डिजीज, पोस्ट इन्फेक्शंस, तो ये तो एक्यूट ब्रेन लीजन्स हो गए। पोस्ट इन्फेक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सिडनहैम्स कोरिया एंड पैंडास, पैंडास में ज्यादा टिक डिसऑर्डर और ओसीडी के Ham's chorea is more of a after a rheumatic fever, but they are on the same spectrum. Neurodegenerative diseases, Huntington's disease, जो है, it will not be, it's not a post-infectious as such. तो हम इसको अलहदा से इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। एंड न्यूरोएकेंथ्योसिस और न्यूरोडिजेनरेशन विद ठीक है जी, ब्रेन आयरन एक्यूमुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमने ये देख लिया। और अदर ब्रेन डिजीजेस में आ जाए बजेस सिंड्रोम एंड एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और पेरिफेरल ट्रॉमा। Then the next slide, let me click outside. Yes, and drug and medication induced, very important. Flufenazine, tick disorder usually don't go to doctors. Of course, if they are not disturbed, they will not go. और अक्सर तो उनको ये होता है कि उनको इसको आदत है, डॉक्टर साहब इसको आदत है, आदत पड़ गई है, तो वो खुद ही पेरेंट्स दे ट्राई टू डू देयर ओन। अगर तो वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है पेरेंट्स और काइंड है तो वो अपनी साइकोथेरेपी खुद ही कर लेंगे उसके साथ। और चाइल्ड विल लर्न हिमसेल्फ, अगर चाइल्ड का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा है तो। और अगर वो बहुत ही डिमांडिंग है, इफ द पेरेंट्स आर ओवरली क्रिटिसाइजिंग, या चाइल्ड अपने पेरेंट्स के अलावा कहीं और रह रहा है, देयर इज अ बुलिंग और इमोशनल अब्यूज, तो फिर दे कैन गेट अब्यूज्ड बाय देयर गार्डियंस समटाइम्स। तो फ्लूफेनाजीन, परफेनाजीन, थायोथिक्सीन, बिकॉज दे कैन कॉज टार्डिव डिस्काइनेसिया, तो अगर बच्चों में देंगे तो इट कैन कॉज टिक लाइक मूवमेंट्स एज वेल, बिकॉज स्पेक्ट्रम एक ही है, टार्डिव डिस्काइनेसिया टिक। इट्स जस्ट द उसका कंट्रोल कितना कर सकते हैं। टिक्स यू हैव मोर कंट्रोल, टार्डिव डिस्काइनेसिया यू हैव लेस कंट्रोल। एंटी डिप्रेसेंट्स कैन कॉज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड, and anti-epileptics, carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, and lamotrigine. They can also cause, and levodopa. And what is not mentioned here, I think I will add the stimulants, because methylphenidate and atomoxetine can also cause, although atomoxetine is less likely, and atomoxetine is also used for the treatment of tics, but even then methylphenidate can cause or worsen the pre-existing tics. Diagnosis, इसमें detailed medical and developmental information history लेंगे। Atypical antipsychotics are used in the treatment of tics, so usually not, no, they won't cause tic. Even haloperidol doesn't cause tic. In high doses it can cause tardive dyskinesia, but अगर छोटी सी हल्की सी डोज में देंगे तो it will be a treatment. Similarly, अगर आप रिस्पेरिडोन बहुत ज्यादा देंगे, अगर आप एक बच्चे को फॉर एग्जांपल आप 3 मिलीग्राम पे स्टार्ट करते हैं, अगले दिन आप 6 मिलीग्राम पे ले जाते हैं, और मे बी के उस टार्डिव डिस्काइनेसिया शुरू हो जाए क्योंकि आपने डोज बहुत हाई दी थी। बट एज सच टिक्स नहीं। अगर आप इसको 0.125 मिलीग्राम वंस अ डे से शुरू करते हैं तो फिर टिक्स नहीं, फिर ये टिक का इलाज होगी। सेम विद हेलोपेरिडोल, अगर आप इसको 0.25 मिलीग्राम और 0.5 मिलीग्राम पर डे पे स्टार्ट करते हैं हेलोपेरिडोल, इट विल बी अ ट्रीटमेंट फॉर टिक्स and it will not cause tardive dyskinesia.
लेकिन अगर आप हाई डोज में दें तो इट विल कॉज, लेकिन जो ऊपर मेंशन की थी, दे आर नॉट ट्रीटमेंट फॉर टिक्स एंड दे कैन कॉज टिक्स और टार्डिव डिस्किनेसिया एनीवे, जिसमें आई थिंक फ्लूपेंटिक्सोल, फ्लूफेनाजीन और परफेनाजीन और थायोथिक्सीन थी। अच्छा, उसके बाद डायग्नोसिस डिटेल, चाइल्ड साइकाइट्री का कोई भी शॉर्ट केस आए तो आपने डेवलपमेंटल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री लाजमन पूछनी है, इंक्लूडिंग मैटरनल प्रेगनेंसी एंड पेरीनेटल हिस्ट्री, दैट मींस ऑस्कीज। तो स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग टू मदर, अगर आप आउटडोर में हैं तो दैट इज अ शॉर्ट केस फॉर यू। तो आप ये जरूर ये चीजें पूछा करें अगर आप, इफ यू आर अंडर टाइम प्रेशर, और अगर आप आउटडोर में टाइम प्रेशर नहीं है तो तब इट्स अ लॉन्ग केस। तो और इफ यू आर डीलिंग विद एन इन पेशेंट, आपको एक्सक्लूसिव थॉरो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, बट इन आउटडोर at least take family history and developmental history pertaining to any child. ठीक है, medication history, drug history means substance, illicit drugs history, educational occupational history, से आपको पता चलेगा severity कितनी है। severity ज्यादा होगी तो educational occupational decline की वजह से बच्चा स्ट्रेस होगा। इंटरपर्सनल हिस्ट्री के उसको कोई बुली तो नहीं कर रहा, अब्यूज तो नहीं हो रहा, स्ट्रेस लेवल्स उसके कितने हैं, और फिर उसकी जो ओसीडी, एडीएचडी, मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी disorders, autism spectrum disorders, stress, anxiety, challenging behavior, they are all the comorbidities और DDs में आ जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, हाइट वेट आप लोग करेंगे, उसके डिस्मॉर्फिक फीचर्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल रेट सिंड्रोम है तो वो अजीब फ्लेक्स से पोस्चर में बैठी होगी, माइक्रोसेफलिक लड़की होगी, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। और उसका देखते साथ पता चल जाएगा कि शी इज मेंटली एटलीस्ट काइंड ऑफ सिवियरली मेंटली डिसेबल्ड और लर्निंग। पोस्चर उसका अजीब सा होगा, गेट, रिफ्लेक्सेस, तो पोस्चर चेक करना है, गेट रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, सिस्टमैटिक रेटिंग ऑफ करंट abnormal मूवमेंट, येल ग्लोबल टिक सिवियरिटी स्केल, YGTSS, ये आप इसको जो इसकी अपनी स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग है उसके लिए आप येल ग्लोबल टिक सिवियरिटी स्केल करेंगे। एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट स्केल और वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। रेटिंग स्केल्स फॉर कोमॉर्बिडिटी, फिर अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो आप उसके लिए भी रेटिंग स्केल्स अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी कोमॉर्बिडिटी। अच्छा, इसके बाद जो है वो टिक्स के लिए जो होंगे वो तो हमने कर लिया कि जी एम्स और YGTSS, टिक्स सिम्टम सेल्फ रिपोर्ट। अगर ADHD है तो कॉर्नर्स होगा और स्वानसन एंड नोलन, व्हिच आई हैव नेवर यूज्ड, व्हिच इज कॉल्ड स्नैप 4। OCD के लिए अगेन येल ब्राउन, येल ने, इसका मतलब है कि बहुत काम किया है इसके लिए, एंड इट इज द सेम स्पेक्ट्रम। तो उसने अबनॉर्मल मूवमेंट्स और अबनॉर्मल कंपल्शंस दोनों के लिए रेटिंग स्केल बना डाले। जो उसने टिक्स के लिए बनाया उसको कहा हमने YGTSS, ये ग्लोबल टिक सिवियरिटी स्केल, और जो उसने OCD के लिए बनाया वो येल ब्रांड ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, और उसी का एक वेरिएंट है चिल्ड्रंस येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, द phenotype between the obsessions of children, obsessions of adults? तो कौन सी टाइप की ऑब्सेशन मैंने पिछली दफा पढ़ाया था कि बच्चों में ज्यादा I give you 20 seconds to answer. Contamination, not so. Any other guess? You have 10 more seconds. Okay. बेसिकली जो इसमें होती है, बच्चों में फियर होता है, ऑब्सेशनल फोबियाज के, मेरे अम्मी अब्बू को कुछ हो ना जाए, दैट्स व्हाट हैपेंस इन चिल्ड्रन।
ठीक है, उसके अलावा फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ग्लोबल, आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस स्केल। मूड्स में फिर CDI, BDI, चिल्ड्रन होंगे तो चिल्ड्रन डिप्रेशन इन्वेंटरी, एंड उसके बाद CDRS और मास्क, और फिर उसके बाद जनरल CBCL चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट और क्लिनिकल ग्लोबल स्केल। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम इस पे लैब टेस्ट अगर हंटिंगटन आप सोच रहे हैं, या जिस तरह हमने ऊपर कहा था कि अगर आप पैनडैस सोच रहे हैं तो आप वो एंटीबॉडीज टाइटर करवा लेंगे, ऑटो इम्यून स्क्रीन करवा लेंगे। हंटिंगटन डिजीज के लिए आप उसकी जेनेटिक स्क्रीनिंग करवा लेंगे, विल्सन्स डिजीज के लिए कॉपर करवा लेंगे, न्यूरो एक्थोसाइटोसिस के लिए अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो जस्ट टू फाइंड आउट द कॉज यू कैन हैव लैब टेस्ट। इमेजिंग की कोई खास जरूरत नहीं है, अनलेस कि आप वाकई कोई रियल कॉज कोई आप ढूंढना चाह रहे हैं, देन यू कैन कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। लास्ट टॉपिक एंड 2 more slides. So, onset of simple motor tic, i.e., of the eyes, face, head or neck, they at ये होता है typically, followed by a rostral caudal progression of motor tics over several years. इसका मतलब है कि ये आगे से पीछे की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ ये जाएंगी, यानी ऊपर सर हेड टू टो प्रोग्रेस करती हैं। तो सबसे पहले आईज में शुरू होंगी, क्योंकि सबसे ऊपर जो मसल्स होते हैं होंगे तो आईब्रोज होंगी और फोरहेड होगा, मे बी वहां पे शुरू हो, फिर आईज, फिर नोज, फिर उसके बाद लिप्स, फिर उसके बाद थ्रोट, फिर उसके बाद हैंड्स। तो यूजुअली हेड टू टोज की प्रोग्रेशन होती है, रोस्ट्रल कॉर्डल प्रोग्रेशन ऑफ over several years. Shoulders में भी ये फिर आती हैं, फिर ट्रंक में आती हैं, एक्सट्रीमिटीज में आती हैं। समटाइम्स दे कैन बिकम कॉम्प्लेक्स टिक्स। ठीक है, और उसके टुरेट सिंड्रोम में हमने, आई डोंट थिंक कि हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स का वो किया है, फर्क किया है। इट कैन at least 1 vocal and 2 motor tics, whether they are simple or complex, it doesn't matter. You can say if it is more than 12 months, you can say it is Tourette. So that's one point which जो मुझे किताब में नहीं नजर आ रहा था, but they don't differentiate कि उसमें complex होना जरूरी नहीं है। Tourette syndrome can have simple or complex tics. So eye blinking is the most common initial tic. Vocal tics typically start at 8 to 9, और फिर उसके मोर कॉम्प्लेक्स टिक्स, यानी हम नीचे आते जा रहे हैं ना, तो ऊपर जितना थे तो ऊपर मोटर टिक्स थी आईज में, नोज में, आपका वो आया जो साउंड बॉक्स है, लिरिक्स, वहां पे फिर वोकल टिक्स शुरू हो गई। फिर उसके बाद और नीचे आए तो हैंड्स आ गए, तो फिर कॉम्प्लेक्स टिक्स आ गई 11-12 पे, और half have the signs of ADHD as well. इसलिए और स्टिमुलेंट्स को एटमॉक्सिटीन भी इसको सिवियर कर रही हो तो फिर क्लोनिडीन पे जाएं। विल डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्लाइड आई थिंक ऑफ टुडे, हाँ, कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। Tics range from mild to severe to stabilize time. ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज होती जाती हैं, माइल्ड होती हैं, कभी सिवियर होती हैं, और कभी स्टेबल हो जाती हैं, बाउट्स की शक्ल में आती हैं कि एकदम डिस्चार्ज हुआ, या स्ट्रेस हो गया तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्ट्रेस खत्म हुआ तो खत्म हो गई। तो अर्ली टू माइल्ड लेसन्स तक इसकी सिवेरिटी इंप्रूव हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट आई से कि अगर वो
we don't know कि वो severity कैसे improve है, maybe कि they are doing more isometric tics या फिर concealed tics. Concealed tics जो होंगी वो होंगी कि वो अगर अपने toe muscles को move कर रहे हैं तो that means के वो that's a concealed movement, तो वो socially acceptable होगा. इसी तरह अगर आप अपने जो biceps है या triceps है उसको आप tense कर रहे हैं without moving your arms or forearms, then it's an isometric टिक, क्योंकि उसमें मसल की लेंथ इतनी वेरी नहीं हो रही. तो दैट मीन्स के they have learned something, or you can advise that to do that in the meantime until they go away, because the ticks won't go away completely unless natural course में चली जाए तो और बात है. और या फिर तो उसके जो और या फिर abdominal और lower limb के muscles को, calf के muscles को they can easily tense. Social functions may be impaired, rejection by peers, उससे उनकी self esteem बहुत डिस्टर्ब होती है, और एंजाइटी अबाउट हैविंग टिक्स इन सोशल सिचुएशंस. तो उस एंजाइटी की वजह से जो है वो उनकी डिस्ट्रेस होता है. टिक्स एज सच, टिक्स बाय डेफिनेशन आर नॉट डिस्ट्रेसिंग, लेकिन उसके बाद जो आगे उसकी सोशल सिचुएशंस है दे कॉज मोर डिस्ट्रेस. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एटलीस्ट पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग हो तो दे शुड नॉट बॉदर उनका बच्चा घर में कितनी टिक्स कर रहा है, लेट देम डू. और जब स्कूल में हो तो दे कैन कंट्रोल इट. Tics may impair academic and occupational functioning by their disruptive impact in class, or interference with violent head and neck tics may cause complications. अगर violent है ना, बहुत ज़्यादा एकदम सर को झटका देता है तो फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. हो सकता है कि वो फॉर एग्जांपल अगर वो टोनिक में जाता है तो वहाँ का वाकई हाइपरट्रॉफी, कंप्रेसिव सर्वाइकल माइलोपैथी हो जाए, फटीग हो जाए उनको. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. ट्रीटमेंट पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे 10 o'clock. इज दैट ओके? म्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करके बताइए. नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह. 10 o'clock. Please turn the recording off. हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएगी.